क्रॉस करते हो मैं तो लग रहा है रोक दिए थे तो फिर रोके हूँ तो بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے۔ آواز پڑھیے عزیزان محترم، اس دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہر زبان کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تہذیبیں ہوتی ہیں، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ گرامر ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان بھی ایک اہم، قدیم، مستحکم اور قائم زبان ہے۔ عربی زبان بڑی اہم زبان ہے۔ عربی زبان کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ لینا اتنا کافی ہے۔ قیامت تک باقی رہنے والا قرآن مجید خود عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان رسول اللہ کی زبان ہے، عربی زبان آل رسول کی زبان ہے، عربی زبان خود اللہ کی زبان ہے۔ اس زبان کی گہرائی اس اکیلا محدود ہے۔ عربی زبان میں کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی پیش، کوئی مد ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد میں کوئی پیغام یا کوئی میسج پوشیدہ نہ ہو۔ دربار پڑھیے محمد محمد وعلى محمد سبحان اللہ۔ عربی زبان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کم ملتے ہیں اور معنی اور مطالب کا سمندر بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ شاید یہی وجہ کہ خداوند عالم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور یہ کہہ کر نازل کیا انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے۔ تلوار پڑھیے محمد اللہ نے قرآن کو عقل والوں کے لیے نازل کیا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر توحید جیسی کتاب نازل کی۔ حضرت موسیٰ نے بتایا حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو عصا تھی وہ ان کا معجزہ تھا، کتاب معجزہ نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جیسی کتاب نازل فرمائی، لیکن معجزہ نہیں بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے ان کی تلاوت سے زمین و آسمان کی تلاوت کی آواز آتی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ کتاب معجزہ نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جیسی کتاب نازل فرمائی مگر معجزہ نہیں بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ کتاب معجزہ نہیں تھی۔ اللہ نے موسیٰ پر توحید نازل کی، داؤد کے زبور نازل کی، عیسیٰ پہ انجیل نازل کی مگر معجزہ نہیں بتایا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے واہ واہ سبحان اللہ، جس کو اللہ نے ہمارے آخری حضرت محمد
मुस्तफा सल्लल्लाहु मुद्दा बनाकर नाजिल किया, लिहाजा किताब मुद्दा की तो उसका वफादार भी मुद्दा था। आइए देखें, अल्लाह ने तौरेत, ज़बूर, इंजील नाज़िल फरमाई, मगर मुद्दा नहीं बताया और ना ही हिफाजत का वादा किया। लेकिन जैसे ही कुरान को नाज़िल किया, कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को बेशक हमीद की हिफाजत करने वाले हैं। सर्वात पढ़िए चार बच्चे होते हैं, लफ्ज़ी, सहनी, मकतूबी और कतबी। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ी यानी जो जुबान से बोला जाए, बेशक तकदीरी यानी जो हकीकत में किया जाए, और सहनी यानी जो सहन में सोचा जाए, और मकतूबी यानी जो लिखा जाए। हर चीज़ के चार दर्जे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मुझे मजलिस पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया, मैंने लफ्ज़ से कहा रुमाल, एक बार नहीं कितनी बार कहा रुमाल, तब भी मेरा पसीना साफ नहीं हुआ। मैं रुमाल रुमाल कहता रहा, मुझे पसीना बहता रहा। वाह वाह। पहली चीज़ तो बेकार निकली। अब दूसरी चीज़, मैंने अपने जहन में रुमाल का नक्श बनाया, यानी रुमाल की तस्वीर बनाई कि मेरा पसीना साफ हो जाए, तब भी मेरा पसीना साफ नहीं हुआ। ये दूसरी चीज़ की बेकार निकली। अब तीसरी चीज़, मैंने जेब से कागज़ और कलम निकाला, उस पर लिख दिया रुमाल, पसीना साफ हो जाए, तब भी मेरा पसीना साफ नहीं हुआ, यानी तीसरी चीज़ भी बेकार निकली। चौथी चीज़, जब मैंने जेब से हकीकत का रुमाल निकाला, पसीना साफ किया, पसीना साफ हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने चार चीज़ इस्तेमाल की, चार में से तीन बेकार निकली, चौथी चीज़ कामयाब हो गई। आप लोगों ने गौर किया, अली को चौथा मानने वालों, जब तक तीन से वास्ता रहोगे तभी फायदा। अली दीन का अलम है, अली शाह ज़मन है, अली कल्बे सलीम है, अली इस्लाम का तन है, अली जमाल हुस्न है, अली इल्म की किरण है, अली ताजदारे वफ़ा है, अली मुसद्दिक़ का खुदा है, अली सिद्दीक़ अकबर है, अली सानी कौसर है, अली मुश्किल कुशा है, अली शेर खुदा है, अली शेर अलंबर है, अली सूरज है, अली ताजदारे वफ़ा का चिराग है, अली मुस्तफ़ा है, अली बद्र हुनैन है। कौन है अली? अली उस ज़ात का नाम है, इसके फ़ज़ाइल को समेटा जाए तो बेकानूता बनता है, इसके फ़ज़ाइल को बिखेरा जाए कुरान बनता है। कुरान करीम तस्वीर इलाही का नाम है। कुरान करीम ऐसी तस्वीरें हैं जो कभी कुछ नहीं। बेशक वाह। कुरान करीम एक ऐसा रास्ता है जिसपे चलने वाला रास्ता रहता नहीं। कुरान करीम हर इंसान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। कुरान करीम एक ऐसा रास्ता है जिसपे चलने वाला रास्ते को भूलता नहीं। कुरान करीम वो आयत इलाहिया है जिसको साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। कुरान करीम वो चिराग है जो कभी बुझता नहीं। कुरान करीम वो मुनाजरा है जिसको साबित करने के लिए दलीलें की जरूरत नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, आप महसूस कीजिए, पूरी दुनिया जमा होती है कुरान को जलाने के लिए, कुरान को खत्म करने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए। और कुरान लिखने वाली किताब नहीं है। अगर कुरान को लिखना होता तो उस दिन मिट जाता जिस दिन हमारे हुसैन का सर कटा था। कुरान को अगर लिखना होता तो उस दिन मिट जाता
जिस दिन इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ बेशक। था। कुरान अगर ता कयामत बाकी रहने वाली किताब ना होती तो उस दिन मिट जाती जिस दिन इमाम हुसैन का सर कट गया था। अजीजों, यकीन तो पहले ही कह चुका था अपनी नाशी में खेल है, ना नबी आए हैं, ना कुरान आया है, ना हुसैन आए हैं, वो तो पहले ही कह चुका था। इसीलिए करबला में लश्करों को भेजा था कि कुरान को भी मिटाएंगे, रसूल को भी मिटाएंगे, हुसैन को भी मिटाएंगे, वो तो पहले ही कह चुका था। अगर कुरान मिटने वाली किताब होती उस दिन मिट जाती। जिस दिन इमाम हुसैन का सर कटा था, इमाम हुसैन ने नोके नहजे पे तिलावत करके इमाम हुसैन ने नोके नहजे पे कुरान की तिलावत करके बता दिया। अगर इमाम हुसैन ने नोके नहजे पे कुरान की तिलावत करके बता दिया, अगर कुरान मिटने वाली किताब होती तो तब कुरान अगर मिटने वाली किताब होती तो इमाम हुसैन का सर कटा था उसी दिन मिट गया था। इमाम हुसैन ने नोके नहजे पे कुरान की तिलावत करके बता दिया। याद रखना, कुरान को जला देना तो आसान है, अगर कुरान को मिटाना बड़ा वाह लोगों वाली को इस कदर जिंदगी गई, इनके घर पे आग लगा दी गई, इनके गले में रस्सी डाली चढ़ गया। हाँ मौला अली पर हुआ पर ये जुल्म की औलादे पर भी किया गया। हाँ सुनो, अगर मौला अली के गले में रस्सी डालकर खींचा गया तो उनके पोते मामे सलाहुद्दीन के गले में तौर डाला गया, हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां डालकर तैयार बनाया, जुआ बहनों के साथ बुलाया गया। कभी कूफे का बाजार, कभी शाम का दरबार। आज वो शाम का दरबार है इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए खड़े हैं। यजीद मरहूम इमाम को देखकर कहता है ये कौन है? बताने वालों ने बताया ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। यजीद कहता है तुमको अभी तक कत्ल क्यों नहीं किया? तो कहा ये बीमार थे इसलिए मैदान में ना आ सके। बस अभी तो यजीद का ये कहना था। जल्लाद यजीद का हुक्म पाकर आगे बढ़ा, बस चाहता था कि मौला सज्जाद को कत्ल करे। इतने में ही मौला के सामने बीबी ज़ैनब आकर खड़ी हो गई। फरमाया है यजीद पहले मुझे कत्ल करना होगा। यजीद कहता है उन्हें भी कत्ल कर दिया जाए। बस अभी तो यजीद कहता है उन्हें भी कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद यजीद का हुक्म पाकर आगे बढ़ा, बस चाहता था कि मौला सज्जाद को बीबी ज़ैनब के साथ कत्ल कर दिया जाए। इतने में ही उन दोनों के सामने जनाब खुदा आकर खड़ी हो गई और फरमाया है यजीद पहले मुझे कत्ल करना होगा। यजीद कहता है उन्हें भी कत्ल कर दिया जाए। बस अभी तो यजीद का ये कहना था जनाब खुदा ने एक मरतबा हबश के रहने वालों को पुकार कर कहा, ऐ हबश के रहने वालों तुम्हारी मेहनत को क्या होता है? तुम्हारे मुल्क की कानून पर कोई गलत नजर डाले। बस अभी तो जनाब खुदा का ये कहना था। हबश के रहने वाले उस यजीद के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए। ये मंजर बीबी ज़ैनब ने देखा, तड़प गई और रुख किया नाना के लौटे की तरफ आवाज दी, नाना आप देख रहे हैं एक कनीज के इतने चांदने वाले हैं, लेकिन आज उसकी नवाज़ी का कोई विचार नहीं।